on April 1 recognized the struggle of Odisha being an independent and individual state. Indian culture and tradition recognized all over the world. We as an Indian recognize the custom and tradition of India to be unique and diverse. India is a country of unity and diversity. We might have different cultures all over, but we still have the same heart. Indian society and culture teaches us about the well-mannered, politeness, respect others, and progress together. Good evening to one and all. On behalf of Gita Autonomous College Bhubaneswar, I, Tanya Arora, And I am a big father. welcome you to today's cultural event, Ek Bharat, Shresth Bharat, on the occasion of Uttar Divas. Music is when the scenery. Music is in the sunrise and sunset. Music is when the rain falls on the surface of the earth. Music is when we believe that the silence is beautiful. Music is everywhere on this earth at the beginning and the end. With this, I would like to highlight something about Odisha and Odisha's vocal music. Odisha vocal music is a primary component including all the Hindustani and Carnatic music and making it into a whole as a single genre. With this, I would like to invite Mrutyunjay Swami to mesmerize this woman. Namaskar, Jai Sri Jagannath. I am Mrutyunjay Swami, first year BTech student of Gita Autonomous College, Bhubaneswar, from the branch Computer Science and Engineering. Also, I am a Visharad final year student of Odissi Vocal Music under the guidance of my Guru, Sri Umeshchandra Das. Now, I am going to present you a very beautiful Odissi classical rag Asavuri, that is Sesya Nagarabara Pridhiremu Galisari, which is tied to Ektar. This song is written by Sri Ramanuja Singh and music directed by Guru Sri Umeshchandra Das and accompanied by Guru Sri Vijay Kumar Jain.
That was indeed a marvelous performance, you know. Yes, it was. The rhythmic vibrance of Odisha has it like a color of a rainbow. With this, I would like to call Kaivalya for Guruvaru. हरि ओम 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 गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः That was indeed marvelous. Because dance is a kind of art form. Because it's not about swinging your hands and legs. It's about showing your emotions.
emotions, your beliefs, your righteousness, your beliefs, your rituals, everything that you can't speak without the words. Very deep, all of you. Dance is not about the humming moments of 3 minutes. It's about a message to remember. It will always stay with us in our memory. With this, I would like to invite the Odissi dance group to highlight this day. Kamani
That was indeed a marvelous performance. And we should respect our talents because our talents have identities. Without the talents, we can't do anything. Talents are something which makes us our own. Maybe talent is something which is shining upon us. With this, I would like to highlight the point. A poet is someone who looks at everything and finds its beauty. Are you talking about yourself, Randy? No, Aradeep, I'm not talking about myself. I'm talking about all those artistic figures who understood that a tongue might be boneless, but it is the most powerful organ with us. With this, I would like to invite Saurabh Dwivedi to perform a poetry in front of us on this auspicious occasion. नमस्कार, मेरा नाम सौरभ कुमार द्विवेदी है और मैं अपनी स्वरचित कविता जिसका शीर्षक है मेरा उड़ीसा, इसकी आहुति करने जा रहा हूँ। इस कविता में इस राज्य के बारे में, इसके धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों के बारे में, यहाँ के खान पान के बारे में बताया गया है। तो मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ। उत्कल नामक इस राज्य की, उत्कल नामक इस राज्य की उड़ीसा उड़िया एकमात्र मातृभाषा है। उत्कल नामक इस राज्य की उड़िया एकमात्र मातृभाषा है। उत्कल माता की पावन सरजमी है ये, उत्कल माता की पावन सरजमी है ये, इसे उड़ीसा भी कहा जाता है। उत्कल माता की पावन सरजमी है ये, इसे उड़ीसा भी कहा जाता है। ब्राह्मणी महानदी जैसी पावन नदियां, ब्राह्मणी महानदी जैसी पावन नदियां इस राज्य से होकर बहती हैं। ब्राह्मणी महानदी जैसी पावन नदियां इस राज्य से होकर बहती हैं। समुद्र से उठती लहर भी यहाँ जय जगन्नाथ कहती है कि ब्राह्मणी महानदी जैसी पावन नदियां इस राज्य से होकर बहती हैं और समुद्र से उठती लहर भी यहाँ जय जगन्नाथ कहती है। यहीं पर पावन धाम कृष्ण का, यहीं पर पावन धाम कृष्ण का जिसे कहते जगन्नाथपुरी है। यहीं पर पावन धाम कृष्ण का जिसे कहते जगन्नाथपुरी है। जहाँ जाए बिना तो तीर्थ यात्रा भी अधूरी है, जहाँ जाए बिना तो तीर्थ यात्रा भी अधूरी है। और रथ यात्रा पर्व यहाँ का, रथ यात्रा पर्व यहाँ का लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। रथ यात्रा पर्व यहाँ का लोग बड़ी धूमधाम से मनाते हैं और हजारों की संख्या में श्रद्धालु, हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस दौरान यहाँ पर आते हैं। कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर, कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर प्राचीन विशालकाय आकर्षक आकार है। कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर प्राचीन विशालकाय आकर्षक आकार है। मंदिर तट धर्म और संस्कृति का शहर, मंदिर तट धर्म और संस्कृति का शहर या तो किताबों में भी स्वीकार है। मंदिर तट धर्म और संस्कृति का शहर
यह तो किताबों में भी स्वीकार है। हीराकुड नाम का देखो, हीराकुड नाम का देखो, विश्व का सबसे लंबा बांध बना है। हीराकुड नाम का देखो, विश्व का सबसे लंबा बांध बना है। दारिंगबाड़ी उड़ीसा का कश्मीर है जो, क्या इसके बारे में कभी सुना है? दारिंगबाड़ी उड़ीसा का कश्मीर है जो, क्या इसके बारे में कभी सुना है? यहीं पर नंदनकानन नामक देश प्रसिद्ध चिड़ियाघर है। यहीं पर नंदनकानन नामक देश प्रसिद्ध चिड़ियाघर है। एक ओर से लगा हुआ इसके महान विशालकाय समंदर है। एक ओर से लगा हुआ इसके महान विशालकाय समंदर है। चिल्का झील यहीं पर है, चिल्का झील यहीं पर है शिव का भव्य मंदिर लिंगराज। चिल्का झील यहीं पर है शिव का भव्य मंदिर लिंगराज। बड़ा बढ़िया समरूप है यहाँ भाईचारे का एकजुट समाज। बड़ा बढ़िया समरूप है यहाँ भाईचारे का एकजुट समाज। और संबलपुरी और उड़ीसी नृत्य यहाँ के, संबलपुरी और उड़ीसी नृत्य यहाँ के पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। संबलपुरी और उड़ीसी नृत्य यहाँ के पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इतिहास, परंपरा, धर्म और संस्कृति की, इतिहास, परंपरा, धर्म और संस्कृति की इसमें संपूर्ण झलक सिद्ध है। इतिहास, परंपरा, धर्म और संस्कृति की इसमें संपूर्ण झलक सिद्ध है। भगवान जगन्नाथ का ये शहर धर्म और संस्कृति से भरपूर है। भगवान जगन्नाथ का ये शहर धर्म और संस्कृति से भरपूर है। जो यहाँ के जमीन में समाया हुआ है, जो यहाँ के जमीन में समाया हुआ है, वो कोयला ही यहाँ का कोहिनूर है। जो यहाँ के जमीन में समाया हुआ है, वो कोयला ही यहाँ का कोहिनूर है। और दाल चावल तो खाए ही होंगे, दाल चावल तो खाए ही होंगे, दालमा पखालो खाकर तो देखो। दाल चावल तो खाए ही होंगे, दालमा पखालो खाकर तो देखो। धर्म, संस्कृति और राजनीति का भव्य उदाहरण एक बार उड़ीसा आकर तो देखो। धर्म, संस्कृति और राजनीति का भव्य उदाहरण एक बार उड़ीसा आकर तो देखो। और अब शब्द नहीं है मेरे पास, और अब शब्द नहीं है मेरे पास इस राज्य की खूबी बताने को। और शब्द नहीं है मेरे पास इस राज्य की खूबी बताने को। क्या इतना सुनकर भी मन नहीं करता तुम्हारा उड़ीसा आने को? क्या इतना सुनकर भी मन नहीं करता तुम्हारा उड़ीसा आने को? अति उत्तम. You think there always comes a moment we all become a listener? True, Olavi. A listener is not just about who speaks or who listens. A listening is a channel where not always it's necessary who responds. Rather, listening is about we all are accepting whatever it is. With this, I'd like to call Ruturaj for his poetry. सर्वप्रथम मैं मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। और कुछ ही समय पूर्व हमारे मित्र सौरभ कुमार द्विवेदी जी ने उड़ीसा के ऐतिहासिक, भौगोलिक तथा यहाँ के खान पान और अनेक विभिन्न वस्तुओं पर उन्होंने अपना काव्य पाठ किया। मेरा काव्य पाठ उनसे कुछ भिन्न है। एक भारत और श्रेष्ठ भारत इसका लक्ष्य है जो लिखा हुआ है हमारे पीछे। तो भारत की श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए हमारे देश के परमवीर सैनिकों का उनका महत्व शिखर पर है। तो उन्हीं के विषय में मैंने कुछ लिखा है कि भारत को आज़ादी कैसे मिली। तो सुनिएगा, अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ कि कल ही मैंने सोचा था कुछ मनोभावक गीत लिखूं। कल ही मैंने सोचा था कुछ मनोभावक गीत लिखूं। प्रथम रात की पहली मिलन पर कुछ मादक संगीत लिखूं। लिखने को तो मैं लैला मजनू का श्रृंगार लिखूं। एक छोटी सूल के चुभने पे मैं अश्रुओं की धार लिखूं। मैं अश्रुओं की धार लिखूं। एक भयानक स्वप्न ने चित्र अनोखा खींच दिया। एक भयानक स्वप्न ने मेरे चित्र अनोखा खींच दिया। उस मनभावक गीत को मेरे नीर नैन ने सींच दिया। लेकिन जब कुछ देख यहाँ पर भारत माता रोती है, तब मेरी कल में अंगारे ही होती है। मैं नफरत वाले दंगों में बच्चों का क्रंदन लिखता हूँ। सरहद के रखवालों को मैं नित अभिनंदन लिखता हूँ। मैं नित अभिनंदन लिखता हूँ। जिसने है सब वार दिया भारत की मान बचाने को। जिसने है सब वार दिया भारत की मान बचाने को।
उन परमवीर सब सैनिकों को मैं नित नित वंदन लिखता हूँ, मैं नित नित वंदन लिखता हूँ। सुनिएगा कि सच्चाई की आवाज है बंद ना हो पाएगी, सच्चाई की आवाज है बंद ना हो पाएगी, बादलों की गर्जना बुलंद ना हो पाएगी। इनकलाबी है यहाँ पर मस्तक नहीं झुकाएंगे, दुश्मनों की झोलियों में अब प्यार नहीं लुटाएंगे। भारत की आन बचाने को हम मस्तक भी कटवाएंगे, माँ भारती पुकारेगी तो खून भी बहाएंगे, परंतु उस खून के उफान में उबाल होना चाहिए। अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए, अंबर से भी ऊंचा हिंदुस्तान होना चाहिए। सुनिएगा कि हमारे सैनिकों ने आज़ादी जो एनसीईआरटी की पुस्तक हम पढ़ते हैं तो उसमें सिर्फ 2 लाइन में लिखा हुआ है कि 1947 में पेपर पर हस्ताक्षर हुआ और आज़ादी मिल गई। तो मैं उन 2 लाइनों में कुछ अपनी पंक्तियां को जोड़ना चाहता हूँ। सुनिएगा कि आज़ादी के संग्राम में वो कतरा कतरा खून दिए, छाती उनका छल्ली था फिर भी गोरों को भून दिए, छाती उनका छल्ली था फिर भी गोरों को भून दिए। पायल की झनकार नहीं थी ना ही मंजीरे का तान था, बदन पर जंजीरों की खनखनाहट थी और चाबुकों का ताल था, चाबुकों का ताल था, फिर भी जुबा पर बस हिंदुस्तान जिंदाबाद था, फिर भी जुबा पर बस हिंदुस्तान जिंदाबाद था। उस सिंदूर की मोल नहीं लिखा है किसी पर पार्टी पर, जिस दिन वो धधक रहे थे कारगिल वाली माटी पर, जिस दिन वो धधक रहे थे कारगिल वाली माटी पर। उन आंखों के 2 बूंदों में 7 सागर डूब गए, जिस दिन वामा की गर्दन मंगल सूत्र से जुड़ गए, जिस दिन वामा की गर्दन मंगल सूत्र से जुड़ गए। छुटकी की राखी जल गई है बर्फीली सी घाटी पर, तब स्वतंत्रता लिखी हुई है हिंदुस्तान की माटी पर, तब स्वतंत्रता लिखी हुई है हिंदुस्तान की माटी पर। इन सब से जो उपाय है उस उपाय को मैं कुछ शब्दों में प्रस्तुत किया हूँ। मैं जानता हूँ कि भारत की आज़ादी का व्याख्या करने के लिए 7 सागर का जल और पूरे दुनिया भर की नींव भी कम पड़ जाएंगी, लेकिन कुछ शब्दों में मैं उस उपायों को प्रस्तुत किया हूँ। सुनिएगा कि रावण नहीं अब पलने देंगे साधुओं के भेष में, रावण नहीं अब पलने देंगे साधुओं के भेष में, अफजल नहीं पनपने देंगे अब्दुल कलाम की देश में। इतिहास में जो हो चुका फिर वो पाप नहीं होंगे, 16 बार मोहम्मद गौरी हरगिज माफ नहीं होंगे। 57 की डोली अब की झांसी रोकी जाएगी, अब की बार वीर भगत सिंह जी की फांसी रोकी जाएगी, अब की बार भगत सिंह जी की फांसी रोकी जाएगी। और अंतिम कुछ हरिओम पवार जी की पंक्तियों के साथ मैं आपसे रुखसत लूंगा कि भारत राणा वीर शिवाजी की कर्मों की माटी है, लक्ष्मीबाई और चूरावत की बलिदानों की थाती है, गांधी गौतम महावीर और गांधी गौतम महावीर की संदेशों की धरती है, सीता संत कबीरा गुरु नानक की उपदेशों की धरती है, संत कबीरा गुरु नानक की उपदेशों की धरती है। सूरज भी सबसे पहले इस धरती को किरणें अपने देता है भगवान, सूरज भी सबसे पहले इस धरती को किरणें अपने देता है। ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर लेता है, ईश्वर भी अवतार हमेशा इस धरती पर। धन्यवाद। Thank you, Ruturaj, for your wonderful words. And everything is planned without the poetry of the footsteps. Sambalpuri dance is a folk dance form, which is originated from the western part of the Odisha, but it has gone through various changes due to the climatic, dialectic, and the various cultural changes due to the people of the Sambalpur, but it still is a masterpiece. Initially, this dance describes about the fight of evil, and it is initially used for propitiating the god. With this, I would like to call the Sambalpuri dancers to fire the stage. Thank you.
point about after that you would have seen the costumes, the dance till now, the Odissi dance and the Sambalpuri dance. I would like a little to highlight. Have you recognized the filigree work of silver jewelry, the bright colors? Aren't they beautiful? This is what highlights the culture of Odisha. With this, I would like to embrace the movement with a melancholy voice of Varsha Granat. मोह मोह के धागे मोह मोह के मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊं जी ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊं जी कोई टोह टोह ना लागे किसी तरह गिर है ये सूझे है रोम रोम एक तारा है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊं जी कोई टोह टोह ना लागे किस तरह गिर है ये सूझे कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं आँखों से तेरी सजी सभी सब कुछ अभी जान लूं कि तेरी झूठी बातें मैं सारी मान लूं तेज है धारा बहते से हम आत्म की सांसें ले यहाँ ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जाऊं जी कोई टोह टोह ना लागे किसी तरह गिर है ये सूझे Wow, what a mesmerizing performance it was. Odisha plays a vibrant colors and diversity. With this, I would like to highlight the points of art and artifacts of Odisha. The filigree work, the epilogue, the brass and the world metals. This is undefined. So, with this, I would like to ask you a single question. Who likes a ride between the black and whites or just between the grays? Colors not only makes our life bright, it also gives certain meanings to it, certain definitions to it. And with this, I would like to call Ritika Singh and Sunal Shaw to present their paintings.
Surasaya. True enough, Audi. With this, I would like to again bring your notice towards a point. Have you noticed that Meera? Have you noticed the devotees? Here is another factor. Here we are going to present an Odissi dance which is made to please Lord Jagannath. Please welcome Riya Mahapatra for it. নাট মন্দির দেবদাসী নাট মন্দির দেবদাসী পাদরে মনপুর সিন্ধিরে মো সিন্দুর পাদরে মনপুর সিন্ধিরে মো সিন্দুর নাচিবি তো পাই সারা দেশি নাট মন্দির দেবদাসী নাট মন্দির দেবদাসী প্রেমিকা ঠানিরে চাহিদে উচবে দেহ মো যায় সিহরে লোমে লোমে মরমে মতে কিমিয়া করিছু বংশী ধারে ত্রিভঙ্গি ঠানিকু ছুরি ছুরি দুনিয়া মো দেইছে পাসুরি ত্রিভঙ্গি ঠানিকু
that is the end to every good event, but for us, it's a new beginning. Now I would like to thank Dr. Bharat Kumar Ahuja, Director and CEO of COET, Dr. Daman Kokar sir, Dr. Rajshri ma'am, Dr. Yogesh Kiskar sir, and entire team of COET. With this, I would also like to thank our principal, Dr. M.K. Rao, Dr. P.K. Rautrai and Dr. M.P. Patra. Adding to this, I would like to thank Basu ma'am and Vibhor sir for making this event a fun one. Thank you all.